Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter named What the Birds Said. So let's start the chapter. This is a story of a young boy who had a special talent of being able to speak to the birds and understand their language. Can you imagine having such a gift? Do you think the boy would have had an easy time? This is a story of one of the incident that happened to him. बच्चों एक स्टोरी है एक बॉय की जो बर्ड से बातें कर सकता है, उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है. तो वो एक गिफ्ट है उसको भगवान का दिया हुआ कि वो उनकी बातें समझ सकता है. हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये गिफ्ट है उसको, गॉड गिफ्ट है कि वो बर्ड्स की बातें समझ सकता है. तो यही इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया गया है कि वो बर्ड्स की बातें समझता है और आगे वो उसे कैसे हेल्प करती है. What the birds said. A lad named Kong Hia Chiang, who lived with his parents in the mountains, understood the language of the birds. One evening, as he was studying, a flock of birds sat on a tree before his window and sang. Kong Hia Chiang, on the southern plains, a sheep awaits you by a heap of stones, a fine fat wether that the dogs have slain. You eat the flesh and we will pick the bone. ठीक है, उसमें बताया गया एक लड़का है जिसका नाम है हिया चैंग. कॉन्ग हिया चैंग उसका नाम है और उसकी एक आदत है या उसको एक गॉड गिफ्ट मिला है. वो क्या करता है, बर्ड से बातें करता है और बर्ड्स भी उससे बातें करती हैं. तो बर्ड्स उसको एक बार बता रही होती है कि एक दूर कहीं मैदान में एक शीप है, वो तुम्हारा क्या कर रही है, वेट कर रही है, लेकिन क्या हुआ, कुछ जंगली कुत्तों ने उसको आकर के मार डाला. तो वो कहती है कि तुम आकर के उसे बचा लो या उसको उठा के वहाँ से ले जाओ. फिर उससे कहती है कि अब उसको मार डाला है, वो मर गई है, तो तुम उसको क्या करना, उसका जो फ्लैश है वो तुम खा लेना और हमारे लिए उसकी बोन्स छोड़ देना. Kong Hia Chang went and brought the sheep home and cooked it for dinner. The next morning a shepherd came and said that one of his sheep was missing. He had found blood on the meadow, had followed the trail, and it had brought him to that house. Kong Hia Chang said that he had brought in the sheep which was killed by dogs. The bird had told him about it. Nobody believed him as they thought he made up the story. He was taken to the prison. अब वो जो लड़का होता है हिया चैंग, वो क्या करता है, उस शीप को उठा करके ले आता है. वो मर चुकी थी तो उसने क्या किया, उसको डिनर में उसे खाया. ठीक है, अब उसका जो शेफर्ड होता है, उस शीप का जो मालिक होता है ना, वो ढूंढता हुआ आता है और उसके घर पहुंच जाता है कि भाई मेरी शीप कल वहाँ पे गुम हो गई थी और मैंने देखा कि उसके ब्लड के निशान वहाँ पे पड़े हुए हैं. मैंने उसके ब्लड के निशानों को जब फॉलो किया तो उसके ब्लड के निशान तुम्हारे घर की तरफ आ रहे थे. तो उसने भाई उसे सच ही बताया कि मुझे बर्ड्स ने कहा कि भाई उसको किसने मार डाला, डॉग्स ने मार डाला, तो मैं उसे अपने घर ले आया था. ठीक है, अब जब वो सुनते हैं कि इसको बर्ड्स ने बताया तो वो बहुत हैरान होते हैं और उसकी बातों में बिलीव नहीं करते. उसको कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं. While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward perched on the wall saw him and piped. Foe approached the western border, banners, bows and spears in order, while the gate lacks watch or warder. अब जब उस चैंग को जज के पास लेके जाया गया तो फिर वहाँ पे एक बर्ड आकर उसने उसको कहा, मतलब वहाँ पे उसने उससे बात की कि भाई दूर से जो एनिमीज़ हैं, जो दूसरे मुल्क के जो जितने भी एनिमीज़ हैं ना, दुश्मन है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश में हमला करने आ रहे हैं. Kong Hia Chang urged his jailer to inform the magistrate of the danger of invasion through the unprotected western pass. The jailer did not believe in Kong Hia Chang's ability to speak to the birds and was also afraid of the magistrate. So he decided to test the young boy first. He took some rice, soaked a part of it in sweetened water and a part of in salt water. He then spread the whole in the roof of a shed. He brought Kong Hia Chang and asked him if he knew why so many birds were chirping overhead. Kong Hia Chang at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying, call a halt, here is a rice fresh and white, half is sweet, half is salt, stop a bit, take a bite. ठीक है, अब वो जो
चैंग होता है वो क्या करता है, उसको जब बर्ड्स बताती है भाई दुश्मन आप पे हमारे देश में हमला करने वाले हैं, तो जेलर को जाके बताता है कि भाई मुझे बर्ड्स ने कहा है कि हमारे दुश्मन जो है वो हमारे देश में हमला करने के लिए आ रहा है, वो वहाँ से निकल चुका है। तो जो जेलर होता है वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता, तो वो क्या करता है कि वो उससे पूछता है भाई तुम्हें किसने बताया, तो वो कहता है भाई मुझे तो बर्ड्स ने बताया। अब बर्ड्स आपसे बात कर रही हैं, आपको दूसरे को बताना है कि बर्ड मुझसे बात कर रही है, तो वो दूसरा आप पे यकीन करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उन्हें पता है बर्ड्स तो क्या करती है, चींची करती हैं, वो तो बात कर ही नहीं सकती। लेकिन वो ये समझाने में असमर्थ था कि भाई बर्ड्स मुझसे बातें करती है, मैं भी बर्ड से बातें करता हूँ। तो वो जेलर क्या, उसने क्या किया, टेस्ट किया उसको कि भाई इसकी बात सही है कि नहीं है, मैं क्या करता हूँ उसको टेस्ट करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने छत पे जाकर कुछ राइस जो थे पहले से उसको सोक किया। पहले तो उसने क्या किया, कुछ राइस को मीठे पानी में सोक किया और कुछ राइस को उसने नमक के पानी में सोक किया, मतलब भिगो दिया। फिर क्या किया, उसने उनको सोक किए हुए राइस को जा करके छत पे फैला दिया। ठीक है, अब उस चैंग को छत पे ले जाता है और फिर बोलता है, राइस देख के चिड़िया आ गई थी, वो सारी क्या कर रही थी, चींची कर रही थी, अपने फ्रेंड्स को बुला रही थी। तो फिर वो उससे पूछता है चैंग से कि बताओ अब ये जो चींची कर रही है चिड़िया, ये क्या कहना चाह रही है। तो वो बताती है कि भाई वो ये कहना चाह रही है कि आओ आओ यहाँ पे क्या है, चावलों की दावत चल रही है और कुछ राइस जो है वो मीठे है और कुछ राइस जो है वो क्या है, सॉल्टी है। द जेलर वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रिजनर understood the speech of birds and therefore hurried away to warn the magistrate. He told the magistrate of warning and the test. The magistrate sent a swift courier to notify the military officers and a scout was sent out to the west. Kong Hia Chang's words were confirmed and troops were dispatched to strengthen the garrison at the pass. The invaders were stopped just in time. The great service rendered to the country by Kong Hia Chang was acknowledged by his sovereign. He was invited to study with the princess and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. अब वो जेलर था, वो समझ गया कि ये बच्चा सच में बर्ड से बात कर सकता है, क्योंकि वो बात तो उसी को पता थी कि उसने जो राइस हैं वो किस में सुखा रखे थे, सोक कर रखे थे। एक तो उसने मीठे पानी में सोक कर रखे थे, दूसरे उसने सॉल्टेड पानी में सोक करके थे। तो ये बात तो उस जेलर को ही पता थी, चैंग को तो नहीं पता थी। तो चैंग को किसने बताया, बर्ड्स ने बताया। तो जेलर समझ गया कि हाँ ये बर्ड से बात कर सकता है और इमीडिएटली जाकर उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि भाई वो जो चैंग है वो ऐसा ऐसा कह रहा है, जो दुश्मन देश के जो सोल्जर्स हैं वो हम पे क्या करने आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने सोल्जर्स को भेजकर अपने जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी जो है वो टाइट करो। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने वैसे ही किया। तो जब उसने भेजे सोल्जर्स तो उसने देखा कि हाँ वाकई में उनमें हमला करने के लिए दुश्मन देश के लोग आ रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए चैंग को जो है रिवॉर्ड दिया गया। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी उसे बुलाया और उसे रिवॉर्ड दिया, उसे प्रेज़ किया और उसे क्या किया, उसे अपने जो राजकुमार हैं उनके साथ पढ़ने की आज्ञा दी। तो इस तरह से जो चैंग था वो राजाओं के बेटों के साथ पढ़ने लगा। तो बच्चों ये थी स्टोरी चैंग की। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।